मुश्किल पर उम्मीद का है नशा, तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना असरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं। Hello, Assalamu alaikum, and welcome to Free Hits by Wali Sports. Wali being the official digital live streaming partner of, the HBL PSL 10, and it is match number 6 of the HBL PSL 10. हमने जो so far matches देखे हैं इस edition PSL के, we have seen big scores on the scoreboard, लेकिन they've mainly been one-sided matches. तो देखते हैं कि अगर आज के match में, be something different, if we'll be able to see, the close contest, the nail-biting thrillers. And speaking of nail-biting thrillers, तो आज का match है, it is the battle of the rivals. It is Karachi Kings versus Lahore Qalandars. हमने देखा कि पिछले editions में उनके कितने fierce, matches हो चुके हैं. And to talk about that further in detail, I have with me our cricket icon and our regular cricket analyst, Ahmed Shehzad. And today, हमारी जो आज के influencer हैं, he is a filmmaker and he is also an artist and he's also a content creator. It is Jimmy Boy, by the way. I really like that name. I think it's got a really cool flair to it. Welcome to the show. Thank you so much. Thank you for having me. Of course. And today we have another cricket, I would say, pundit. We've seen him work with the teams, with the PSL teams. He's also traveled with the Pakistan national cricket team. He's worked with the PCB. He's also got a lot of cricket knowledge. I have with me Ehsan Nagi. Ehsan, assalamu alaikum and welcome to the show. Walaikum salam. Pleasure to be here, man. Yeah, it's nice to have you too. Acha, सबसे पहले तो let's talk about yesterday's match. जो Peshawar Zalmi का जो downward disaster जारी जाता जा रहा है. Now they're at the bottom of the table yet again with an even more negative net run rate. और अगर हम match summary देखें तो इस्लामाबाद United I think were absolutely fantastic. Sahibzada Farhan, उनकी जो century थी, I think that really set the tone for them. And then जो उनकी partnership भी थी Colin Munro के साथ, and they put up a mighty score on the scoreboard of 243 for 5. Peshawar Zalmi आए bat करने के लिए, chase करने के लिए, and they only had 3 batters जिन्होंने double digit में score किया. तो काफ़ी ही disappointing loss थी उनकी तरफ से yet again. अहमद, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, बाबर आजम की हमने बात की थी. He came out as an opening batter again. So before we talk about his captaincy, let's just talk about why did he do that yet again? I don't know, maybe he's more comfortable over there. There's no doubt about it. He thinks that first 6 overs are a much easier platform to bat as a batter. So जिसकी वजह से उनके पास जो शॉट भी मौजूद हैं वो ऊपर से उस तरह है नहीं. आप देखें कि उनका बेस्ट चांस वही होता है कि somehow वो अपने कन्वेंशनल रह के, जिसमें बॉलर उनको बुरे बॉल कर दे, वो उसमें से अपना 25-30 रन कर लें और उसके बाद 6 ओवर खत्म हो तो वो 50 की तरफ जाए. 50 के बाद जाके वो कोशिश करते हैं कि वो मारे. ये उनका एक पैटर्न रहा है ओवर द इयर्स. वो समझते हैं कि वो वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल है. लेकिन अगर आप पेशावर ज़ल्मी की बात करेंगे, the kind of bunch they have with them, they have Mitch Owen. अभी उसकी recently हमने इनिंग देखी है जो कि फाइनल के अंदर उसने big bash star, yeah. He smashed a mind-blowing century. And when you have somebody in T20 cricket, अगर मिच ओवन जैसा बंदा है तो यार मैं भी, अगर कोई भी कप्तान हो, वो कहेगा यार आओ, the stage is yours. आप 3 मैचों में से 1 जितवा के दो हम. That's how you go. फिर देखें मोहम्मद हारिस 87 उन्होंने किया है, जबरदस्त प्लेयर है यार, सीनियर प्लेयर है ना बाबर आजम. हमने जो अपने बड़ों से सुना हुआ है, जब सुनते हैं किसी की भी स्पीच, लीडर क्या है? लीडर वही है सेल्फलेस जो है, वो बच्चों को आगे करता है, राइट? तो वो पाकिस्तान टीम में हारिस खेल रहा है. कितना मुश्किल है यार टीम के लिए कि बाबर खुद वन डाउन आ जाते और हारिस को कहते कि यार ओपन आ जा, कोई बात नहीं. अगर हारिस ना चलता तो फिर शफल कर लेते. यहाँ से आपकी जो है इंटेंशंस पता लगती हैं मुल्क को, लोगों को, और लोग आप पे देखें हर चैनल पे यही बात हो रही है. तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर बाबर आजम. आई थिंक वो भी स्कोर करेंगे अगर वो थोड़ा सा नीचे आ जाए और या ओवन को या हारिस को चांस दिए जाए. अच्छा एहसन, जिस तरह इन्होंने कहा कि बेसिकली जो बॉलर्स की भी इन्होंने बात की, अब अली रजा की भी बात की, ही इज अ फ्रेश यंग टैलेंट, लेकिन आपको लगता है कि बॉलर्स ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहा? एक तो मेरी आपसे शिकायत है कि आप जब भी खाना खाते हो ना, तो पहले आप एपेटाइजर स्टार्टर लेते हो, फिर आप मेन कोर्स लेते हो, फिर डिजर्ट. आपने अहमद को पहले डिजर्ट दिया. He said all the things you wanted to say. लेकिन मैं आपसे ही पूछ लूंगी अभी कैप्टनसी के बारे में, आप फिक्र ना करें, इसके बाद मैं आपसे ही पूछूंगी. देखिए, जहां तक बॉलर्स की बात है ना, आपको कुछ कंडीशंस को भी मद्देनजर रखना चाहिए. देखें,
पहले कंडीशंस की बात कर लेते हैं। जो पिंडी का स्टेडियम है, ऑफ कोर्स इट्स अ स्मॉल स्टेडियम, पिचेस जो है वहाँ पे वो बहुत फ्लैट, बहुत क्रू होती हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा बैक, तो वहाँ पे आप बहुत दफा बॉलर जो मर्जी कर ले उसको स्कोर पढ़ना है। जाहिर बात, आप जिस तरह की फील्ड की बात कर रहे थे कि अगर आप क्या नाम है वाइड यॉर्कर करा रहे हो और अगर वहाँ पे थर्ड मैन नहीं है तो वो तो आप यू आर लेटिंग योर बॉलर डाई वहाँ। लेकिन देन अगेन उसके बाद बहुत सी ऐसी अच्छे बॉल्स भी होती हैं जो वहाँ पे एज होके मिडल होके चौके छक्के हो जाते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें, आप देखें राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीजन ये एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसने T20 के एवोल्यूशन को बहुत अच्छा अडॉप्ट किया था, और उसकी वजह से आप देखें इन्होंने हमेशा अपना जो टॉप ऑर्डर या बैटिंग ऑर्डर है ये फॉरेनर से स्टैक करते थे। क्यों? क्योंकि इनको होता था कि हमारे पास फॉरेनर्स ऐसे होने चाहिए जो कि अच्छे हिटर्स हो, हमें बड़ा स्कोर दे दें, क्योंकि आजकल T20 क्रिकेट में कुछ भी डिफेंड हो सकता है, सॉरी कुछ भी चेज हो सकता है, तो इन्होंने हमेशा हो गया। अब इनकी लक ये हुई अहमद भाई के उसके अंदर एक तो मोहम्मद शहजाद जो अभी तक खेले नहीं, वो बड़े अच्छे फॉर्म में थे, इन्होंने पिक कर लिया क्योंकि उन्होंने 2 अपनी पिक्स रिजर्व की हुई थी, और साहिबजादा फरहान को उठा लिया जिन्होंने 3 अभी सेंचुरीज की थी नेशनल T20 के अंदर, और साहिबजादा फरहान ने कल वो दिखा दिया किस तरह की उन्होंने कल इनिंग खेल दी वहां पे। तो जब और फिर उसके बाद T20 क्रिकेट में ये भी होता है कि जब एक प्लेयर इस तरह के फॉर्म में हो, जब वो इस तरह से खेले, तो आपको यही लगता है कि यार शायद बॉलर्स को नहीं पता हमने बॉल कहाँ करनी है। आफ्टर ऑल अल्जारी जोसेफ भी वहाँ पे बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन सुफियान मुकीम भी थे, ग्रेट बॉलर, T20 बॉलर, वो भी लग रहा था कि फिर कॉलिन मंरो एक एंड से हिटिंग कर रहे हैं। So I think a lot of credit goes to how Islamabad United played that game. अच्छा, you spoke about the ground as well, the pitch. We know कि जो generally Rawalpindi Cricket Stadium है, in the evening it's usually got more dew, right? तो basically usually जब team toss जीतती है, they opt to bowl first. But we've been seeing the opposite of that happen throughout this edition of the PSL. So why is that? अगेन देखिए इसके अंदर जो कल मुझे लग रहा है ना, कल इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो खुल के वो ही बता अहमद मुझे उनको I don't think he's compromised. वो compromise नहीं कर रहे, कोर्स का वेट कर रहा हूं, हमें थोड़ी वो आएगा, वो सवाल करेगा। देखिए उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, आप देखें पेशावर ज़ल्मी का लास्ट मैच कैसे गया। लास्ट मैच अगेन सिमिलर टेम्पलेट थी, क्वेटा ने एक अच्छा स्कोर लगा दिया था, पेशावर ज़ल्मी कोलैप्स। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू हमारा ये है, हम IPL में देखते हैं कि 250 भी चेज हो जाता है। अभी 3 दिन पहले सनराइजर्स ने चेज किया हो, हमें अभी भी हमारी वही मेंटालिटी है जहाँ पे 190 200 होगा हमें लगेगा बहुत ज्यादा स्कोर हो गया। इस्लामाबाद को पता था कि ये पेशावर ज़ल्मी एक तो वो एक बैगेज क्वेटा के मैच का लेके आ रही है, सेकेंडली इनके जो प्राइम बैट्समैन है बाबर आजम वो फॉर्म में नहीं है, तो हम अगर एक अच्छा हमने स्कोर लगा दिया तो उन पे प्रेशर, they're going to collapse, और वही हुआ, and that's exactly what happened. अच्छा जिमी बॉय, अब आपसे पूछते हैं, we know that you're an avid cricket watcher, तो आप अपने you're a cricket fan, तो how do you incorporate your love for cricket and your art together? देखिए मैं वो बंदा हूँ कि गली मोहल्ले की क्रिकेट होती थी, वैक्यूम ट्यूब वाला टीवी होता था सोनी का हमारे घर पे, वो मैं गली में रख के ढोल वालों को हम 100 रुपए 50 रुपए जमा करके बुलाते थे। अहमद भाई के भी चक्के देखते थे, ठीक है, लाला के भी, वो टाइम देखा हुआ है, ठीक है। और वो टाइम इस तरह का था कि हम देखते देखते क्रिकेट बड़े हुए। लेटर ऑन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से जीता हुआ मैच आ रहा है ना, ये जो जी रिजवान ने बुमराह को जो जी वो जी बिल्कुल न्यूयॉर्क वाला, आफ्टर लूजिंग टू यूएसए, ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली आफ्टर लूजिंग टू यूएसए फर्स्ट और फिर इंडिया। ऑलरेडी दिल आपका टूट ही चुका था बाय द टाइम दे लॉस्ट टू यूएसए। देखें मोहब्बत इसी चीज का नाम है कि दिल आपका टूटता है बट यू नेवर गिव अप, एग्जैक्टली। वो टॉक्सिक लव एंड हेट रिलेशनशिप चलता रहा है, अनफॉर्चूनेटली इट हैज बिकम टॉक्सिक नाउ। अहमद भाई उसके बाद जो है इवन मैं PSL का बड़ा डाई हार्ड सपोर्टर था। फिर वो यूएसए के टैक्सी ड्राइवर बेचारे, अहमद भाई एक दिन में 2 दफा यार, देखिए आप उधर ऐड कर रहे हो इधर दर्द होती है, वो बेचारे काम पे जाते भी नैंडोज भी खुद ही लेके आते हैं। ये मुझे लगता है इन्होंने, ठीक है, उनको तो आपको क्रेडिट देना चाहिए। कितना दें, मैं तो पिछले 1 साल से दैट्स अमेजिंग, पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं, उनकी फुल टाइम जॉब्स हैं। कि रियलिटी बताएं कि आप अपने फुल टाइम प्लेयर से जो महाना करोड़ों रुपया कमाते हैं, उनको टैक्सी ड्राइवर ने यूएसए में 2 दफा एक दिन में। देखिए अब उस मैच को काफी वक्त गुजर गया, कुछ बदला नहीं है, ऑब्वियसली कितनी दफा तोड़ोगे, अच्छा चलिए अपनी कहानी आप पूरी हमें बताएं पहले।
कहानी फिर यही है कि फिर जब मैंने देखा इनकी फिटनेस, फिर जब न्यूज़ देखें, सोशल मीडिया आपके सामने, अब कोई चीज़ हर भी जो है ना वो कुछ नहीं छुपती। ट्रांसपेरेंट है हाँ, आपके सामने। और जो कुछ रह भी जाए वो हम बताते हाँ, अब ये नसीम शाह, ये हमारे बॉब्जी द किंग, अब इनकी फिटनेसेस हमारे सामने है, ठीक है। जो ये मीडियम लार्ज शर्ट्स पहनते थे, अब ये एक्सेल भी नहीं इनको आ रही, एंड दैट्स द रियलिटी, ठीक है। फिटनेस, एजुकेशन, मोनोपली और इंस्टेबिलिटी, हायरार्की में भी और टीम में भी, जब ये चीज़ें माइनस होंगी तो क्रिकेट पे फोकस होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है इंसान की ईगो, वो हायरार्की में भी है, वो टीम के अंदर भी है। जब आप ईगो आपके अंदर होती है तब आप सेल्फिश भी होते हैं। तो वी नीड टू वैनिश द ईगो एंड द सेल्फिशनेस, ताकि हम क्रिकेट पे फोकस कर सकें। इस परचम के साए तले हम एक हैं और हमें क्रिकेट से So why प्यार don't you है। make why don't you और make a documentary or something cool on this on your beliefs regarding Pakistan? I've actually made a That'd be short quite film good. on this. It's called Jugnu. It's on my Instagram. Acha, nice. At Guys, the go date- and watch it. Yes, at the date Jimmy Boy Action on Instagram. It's pinned on my profile. Nice. Zarur, zarur. Guys, don't forget, you should Would love definitely it. should. Maybe Vese, I'm gonna go after this. Yeah, I'm gonna sure, check sure, it out. sure, sure. Be an interesting It's watch. about be the change. You have to be the तो change. That's- अभी आपको that's कोई very उम्मीद true. है कि पाकिस्तान टीम में कोई अनकरीब कोई बेहतरियां भी आएंगी, या उम्मीद भी टूट गई है? नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है अहमद भाई, उम्मीद हाँ, डेफिनेटली Don't है, give up, बिल्कुल guys. है। मैं इस फॉर्मेट के ऊपर काम कर रहा हूँ कि ये जो 5 से 6 हमारे टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप टायर में जो आते हैं, बाबर आजम, नसीम, ए ग्रेड प्लेयर्स, ये फिलहाल ए ग्रेड नहीं है। अच्छा, ठीक। ये ए ग्रेड नहीं है, इनको गिव अप करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि Youngsters के लिए paid यस, करनी पड़ेगी। जो नए टैलेंट है, देखिए हम न्यू टैलेंट को बैकअप ऑप्शन खिला रहे हैं। मोहम्मद हारिस को हम नहीं, यार ठीक है हम नहीं चले, हाँ हारिस है, इसको ट्राई करके देख लेंगे, अगर ट्राई भी किया तो उसके नंबर पे नहीं। नंबर पे नहीं, जहां पे वो डिजर्व करता है। तो ये चीजें, ये देखे ना, ये सेल्फिशनेस आ रही है यहाँ पे, ये वो वाली चीज है कि नहीं यार हमने नहीं गिव अप नहीं करना कुर्सी पे। आई एम नॉट सेइंग कि हमें क्रिकेट पे गिव अप करना चाहिए, नो प्लेयर शुड गिव अप ऑन क्रिकेट। अब क्विकली Yes. आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? नहीं, पहले ये तो youngsters- बताएं। फखर जमान, फखरे पाकिस्तान, ऑलवेज। और यंगस्टर्स में से आपका फेवरेट प्लेयर? हारिस। हारिस और अभी फैज़ फरहान के बारे में मैंने अभी वो उन्होंने ऑनेस्टली आया देखा था? नहीं, कल का मैच। मैं हाइलाइट्स में डेफिनेटली The देखूंगा। guy scored 4 century, हम में से कोई नहीं कर पाया ये। ठीक है। 1.5 महीने के अंदर उसने 4 T20 की सेंचुरियां लगाई हैं, 4। वेरी नाइस। रेड हॉट फॉर्म के अंदर है, और कुछ लोग उसको ये कहते थे कि इसको खेलना ही नहीं आता, ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। और वो लोग कहते थे जिन्होंने कभी ना तो बल्ला पकड़ा था और ना ही T20 क्रिकेट के आसपास भी गुजरे थे, वो हमें T20 क्रिकेट के बारे में बताते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं गलत है। तो उस लड़के ने 4 सेंचुरियां की हैं, यू विल सी हिम प्लेइंग इंशाल्लाह। ना सिर्फ वो पाकिस्तान से खेलेंगे इंशाल्लाह। आप, वो इंशाल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेट को ये बच्चे आगे लेके जाएंगे। Yeah, इंशाल्लाह, साहबजादा साहबजादा फरहान के बारे में बात करेंगे, but before we jump into that, I just want to know which PSL team do you support? LQ, लाहौर कलंदर्स। ओ, आप लाहौरी हैं तो यस, फिर- मैं लाहौरी हूँ, Of born course, and वो तो raised in होना ही लाहौर। जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया जमिया नहीं। नहीं है। यार क्या हाल है यार? That is exactly how they talk. I think Lahoris are known for that thing in their accent. That are हाँ, वो जो अड़े। टिंग उसको कहते हैं, टिंग या पता नहीं यार्ड। कुछ इस तरह का, Yeah. यार्ड। अच्छा तो कल अच्छा, मैं ही देखा। कल मैच मैंने आज देखेंगे ना, आज लाहौर PSL कलंदर्स में फॉलो, खेल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ डिसअपॉइंटमेंट जो चल रही है ना, वो एक लॉन्ग टर्म डिसअपॉइंटमेंट है। इवन दो हमारा नेशनल इवेंट है, लेकिन वो भी अभी माइनस है फिलहाल। देख लिया कर। आपका शो मैं देखूंगा हाँ, बस। हाँ, by the way, वो narrative काफी को entertaining हाँ, है, बस फिर। काफी entertaining है। Sorry, go ahead. मैं बस प्रोडक्शन टीम से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम दोनों को लूडो ला दें। हाँ, हम खेलेंगे क्योंकि I think सेपरेट शो I also हमें प्लीज एक लूडो ला दें। I agree. मुझे लगता है कि वो बल्कि अच्छा होस्ट कर रहे हैं, आप ही करते रहे, आप ही उनसे सवाल पूछते रहे, मैं इधर चिल करती हूँ। No problem, I have no problem कुछ with चीजें that. होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फैन से मैं खुद भी बड़ा कम मौका मिलता है इंटरेक्शन। आज बैठे हुए तो उनको मैं भी होस्टिंग का कोशिश बड़ा करता हूँ। शौक है वैसे, लग तो मुझे ज्यादा। यही रहा नहीं, है, नहीं, बड़ा शौक है ना, आपको ना, मेरे ना। इस शो सिर्फ पे। वो क्वेश्चन जो आप नहीं पूछ पाती वो मैं पूछ आप मुझे मौका देंगे तो मैं चलो, पूछूंगी अब ना, मैं मुझे आपको मौका ही नहीं मौका दे रहा देते हूँ, बात पूछ करने की। लीजिए। अच्छा, अब हम चलते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ उनकी बात करते हैं। एहसन, आप मुझे बताएं, साहिबजादा फरहान, ही इज द हॉट प्लेयर टू टॉक अबाउट। तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग्स बाय हिम, जैसे अहमद ने कहा, 4 centuries, first century in PSL, but he's in absolutely brilliant form. What would you want to say about him? अहमद ने ना एक बात बहुत अच्छी की है अभी कि ये वापस पाकिस्तान टीम में इनका आना बनता है। उसकी वजह ये है कि उनकी फॉर्म लगी हुई है, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, और अभी पाकिस्तान ने आई सपोज इस पूरे साल में बिफोर द T20 वर्ल्ड कप कोई 25-27 T20s खेलने हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप साहिबजादा फरहान को भी कंसिडर करें एंड यू टेक हिम इन द मिक्स, क्योंकि वजह ये है साहिबजादा फरहान ने अपनी जितनी इंटरनेशनल T20 क्रिकेट खेली है वो या तो ऑस्ट्रेलिया में खेली है या न्यूजीलैंड में खेली he है। said एक this मैच yesterday. सिर्फ उसने खेला था
अबू धाबी में 2018 में और एक अभी उन्होंने जिम्बाब्वे में खेला। सो उनको आई नो लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, बट एक टफ कंडीशंस के अंदर अगर आप एक नए लड़के को बुलाएंगे तो वो क्या ही करेंगे। तो आई थिंक अगेन जिस तरह हम बात करते हैं कि शायद पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, PSL बिकम्स अ क्रूशियल प्लेटफॉर्म, क्योंकि इतने लड़के डोमेस्टिक में रगड़ा खा रहे होते हैं, बट व्हेन दे मेक इट टू द PSL यहाँ पे सारी एक अभी आप देखें ना, पूरी दुनिया पूरा पाकिस्तान एक स्टैंड स्टिल पे आया हुआ है PSL की वजह से। सो जब ये यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, एवरीवन यू नो एडमायर्स देम। And PSL is to find players, to find emerging players, to find more talent that can represent Pakistan. PSL is to develop the players. I differ a bit. वैसे आपने काम किया है PSL में, so yeah, he would know. The PSL is actually to make money. PSL is to make Pakistan cricket sustainable. But that's what they've told us. That's what they've told us. That is how it should be, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जो PSL से पैसा कमाती है, वो फिर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट चलती है। आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, वहाँ से प्लेयर बनता है। And PSL is that final frontier जहाँ से आपको पता चल जाता है कि this guy players होते हैं, वो they get picked in the draft and then they. See, again, so there's a question मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, Okay. So the question अच्छा is, मेरी बारी अब। अब देखिए साइम अयूब जी जी जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस नहीं की थी जितनी साहिबजादा फरहान ने की, लेकिन उन्हें यंग सेंसेशन बना के पेश किया गया, जिसकी वजह से उनको 25 फेलियर के बाद भी खिलाया गया। अब क्योंकि साहिबजादा फरहान ने वो करके दिखाया जो किसी ने नहीं, आपका क्या ख्याल है कि इनको कितने मौके मिलने चाहिए? देखें अगेन अहमद भाई, जिस तरह मैंने कहा ना, 25-27 आपके पास अभी T20s हैं। इसके अंदर जो पाकिस्तान ने एशिया, ये अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, सबसे बड़ी गलती की थी कि आपने अपने ओपनर्स ईयर मार्क नहीं किए हुए थे। यहाँ पे इनको जरूरी है अपने 3 से 4 ओपनर्स ईयर मार्क कर लें। फखर है, साइम है, या ये साहिबजादा फरहान है, हारिस है, जो भी हैं, ये ईयर मार्क हो और आपको पता हो हमने इनको किस तरह लेके चलना। फर्स्ट सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ, अगर आपने साहिबजादा फरहान को लेके आना है और फखर जब उसमें साइम अयूब का कम बैक करा सकते हैं, ये तो इनको लेके चलना है, मिक्स एंड मैच। आपने जो फेलियर उसकी बात की साइम अयूब की, एक चीज हम भूल जाते हैं अहमद भाई, उसके अंदर ये था कि उस वक्त उस तरह से साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंसेस नहीं थी। उस वक्त हमें साइम अयूब ही बेहतरीन लग रहे थे, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए इन्होंने उस फर्स्ट क्लास सीजन के अंदर 200 किए थे, इंक्लूडिंग आई थिंक इन द फाइनल जो लाहौर में इन्होंने किया था। तो वो ना सिर्फ T20 में परफॉर्म करके आ रहे थे, बल्कि फर्स्ट क्लास में भी परफॉर्म किया था। सो क्वेश्चन ये नहीं था, हाँ, क्वेश्चन था कि इतना परफॉर्म T20 में किसी ने नहीं किया जितना साहिबजादा फरहान, प्लस बेस्ट बैटर है वो पिछले 3 साल से साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये T20 के अंदर की बात नहीं कर रहा, ये मैं 4-डे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो उनकी परफॉर्मेंसेज और साइम अयूब की फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंसेज में जो कि इनफ थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, खेलने वाली थी। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा किया, एक मिल गया पाकिस्तान को प्लेयर ना। इसी तरह अब क्या ये प्लेयर नहीं है? क्या इसको भी उसी तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए? अगर साहिबजादा फरहान और साइम अयूब मिल जाए ऊपर से और फखर जमान एक मिल जाए और पाकिस्तान को ट्राई, यार पाकिस्तान तो 80-90 स्कोर भी लगा सकता है यार 6 ओवरों में। कल 77 किया है ना, देखो पावर प्ले में। एक तरफ साइम अयूब मार रहा है, एक तरफ फखर जमान मार रहा है, एक तरफ साहिबजादा फरहान मार रहा है। पाकिस्तान तो ऊपर टॉप ऑर्डर में सेंसेशन बन गए। फिर हारिस, इमेजिन यार, है हमारे पास प्लेयर, वी जस्ट नीड टू गो विद द राइट कॉम्बिनेशन, winning combination, which I think Peshawar Zalmi really needs to learn because they have the players but just not the right winning combination. अच्छा जिमी बॉय, आप बताएं, आपको साइम अयूब पसंद है? Yes. Do you like He's his an no emerging look player. shot? I like Yes, him. yes. Do you like his no look shot? Have you seen it? Yeah. I don't know the shot exactly, It's very cool but shot. overall his game is good. I see the potential. He's doing good, and he will do good. I think he's a wonderful I have- player. अच्छा Yes, थोड़ा he सा is. अपनी He tell us a little bit about your characters that you do in your own thing. Yeah, yeah. Tell us a little bit about that. Basically, Ahmed bhai, I was born and raised in Lahore. Okay. So I do these Lahori characters, different areas of Lahore. Okay. So there's Gawal Mandi, which is it goes like, Jonsa hai, kar lega Bobsida King kar lega. He's very sarcastic. Yeah. He's very roasting character. अच्छा okay. Jonsa hai, kar lega ji. बोबजीदा किंग कर लेगा, किधर किया, कितने टूर्नामेंट खेलनी है, एक भी सीरीज नहीं जितवाई, which is reality. Which is reality. You're very good at this, like imitating that accent. Yeah. and, So know. then there's Putting the on that persona. सबसे ज्यादा एंटरटेन अहमद शहजाद हो रहे हैं। सबसे ज्यादा वैसे पता है आपको ही मजा आ रहा है, सबसे ज्यादा आप नहीं, वैसे ऑफ कैमरा आपको भी मजा आता है। हमारा मसला सिर्फ ये है कि जो बंद कमरों में बातें होती हैं वो हमने ठीक हो रही है। यही हमारे सीनियर्स को भी हमने बोला था, यही आवाज आपको भी बोल रहे हैं। थैंक यू। मैं क्या कह कवर ड्राइव हो रही है जी, कवर ड्राइव, इतना कवर ड्राइव नजर ही नहीं आ रही। और लर्न हुआ है कि नहीं हुआ कुछ?
लेकिन यहाँ तो विन नहीं, चैंपियन टीम इज नेवर अफ्रेड ऑफ द रिजल्ट, वी ओनली नो प्रोसेस। नहीं, यू हैव टू विन, यू हैव टू लर्न। ऐसा नहीं है अभी हम आपको कहेंगे अभी भी कोई चांस है, चांस नहीं है, अच्छा नहीं कोशिश है। कर By रहे the way, हैं you know, he but was present there जब ये speech चल रही होती थी, तो एहसन लगे used to be present there. Yeah. Yeah, he was in the Multan Sultan. ये सारा स्क्रिप्ट Nice, ये nice, लिखा nice. है। हाँ, सारा इन्होंने कहा था, अच्छा मेरी बात ये- सुनिए, ये लिखना, हमारी वीडियो वायरल जाएगी, हमें मीडिया के लिए चाहिए, तो हाँ। please, you know, make sure you ये- say. लेकिन मेरा फोकस इंग्लिश में नहीं है, मेरा फोकस क्रिकेट प्लेयर। ऐसा नहीं हम दुखी नहीं है, अभी दुखी हैं, अभी दुखी हैं, सारे देखने में दुखी हैं, हमने एफर्ट ये नहीं हो सका, नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। नहीं वो कह रहे हैं कि मैं अब मेरी इंग्लिश नहीं, कॉम को मेरे से इंग्लिश नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस हाँ। चाहिए। तो आपका क्या कहना है? उस यार, वो बात चलिए, सुन के बेचारे मुझे ने तो वो century बात तो सुन बना के लिया मैं बड़ा अपने पहले पेट्रियोटिज्म मेरा आसमानों पे निकल गया था, क्या बात कर दी है, विच इज राइट, इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, Yes. इंग्लिश इज अ स्किल। या तो लेकिन वो कह रहे हैं परफॉर्मेंस कॉम को चाहिए, वो भी तो नहीं ना हो रही। हाँ वो भी नहीं हो रही, तो वही बात है ना, तो वो कर फिर दो। लेकिन वो हाँ। थोड़ा सा राइट ट्रैक, एटलीस्ट पीएसएल में उन्होंने पहले मैच में सेंचुरी मैं तो कहता हूँ बना दी ना। जबरदस्त सेंचुरी थी, लेकिन थोड़ा सा टीम तो हार गई comeback ना, आ रहा है। हाँ, टीम लेकिन- हार गई, 38 बॉलों पे पहला 50 किया है। और अब captain यही भी वो है, by the अब way। यही साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान के पिचेस पे ठीक है 50 किया 26 बॉलों पे पहला, और यही रिजवान ने किया 38 बॉलों पे। विंस ने करके बता दिया कि भाई इस तरह है आजकल की लेकिन क्रिकेट। वो कराची स्टेडियम। यार मेहर मेरी बात सुनो, अच्छा आप बोलो। बात इतनी है कि ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, समझना चाहिए, पाकिस्तान के काम आएगा ये चीज। बात इतनी सी है, अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं 70 और करते हैं 50-60 बॉलों पे, ठीक, ये टीम के काम नहीं आएगी, ये आपके पर्सनल माइलस्टोन के लिए ठीक है। वहां विंस जैसा कोई प्लेयर आएगा ऑपोजिशन के अंदर, आपने 50 में किया, वो 40 बॉलों पे 70 करके आपके ऊपर जाके मैच हरा देगा। तो अब बात ये नहीं कि आप कितना कर रहे हो, बात अब ये आ गई भी है कि कितनी कम बॉलों पे आप कितना स्कोर कर रहे हो। आप 10 बॉलें खेलो, आप 25 स्कोर कर रहे हो, टीम आपसे खुश है। इसी क्योंकि एंड तक टीमों के पास अब बैटिंग मौजूद है, तो दुनिया किसी और तरफ मूव कर रही है। हम यही कह रहे हैं कि इंग्लिश की कॉम को डिमांड नहीं, भाई सही कह रहे हैं, इंग्लिश आपसे कॉम डिमांड नहीं कर रही है, परफॉर्मेंस करे तो वो तो करिए, इंप्रूवमेंट तो लेके आइए, कॉम्बिनेशन तो ठीक खिलाइए, प्लेइंग 11 तो अच्छी खिलाइए, बच्चों को तो ग्रूम करिए, विजन तो दिखाइए। तो आप कुछ भी नहीं दिखा रहे मुझे ना, पता है मसला ये है। T20 में you know every ball counts। अच्छा ऐसे बताएं कि कैप्टनसी की भी बात हो रही थी। I just want to kind of come back to Babar Azam. Sorry कि you know we talk about him a lot on the show. लेकिन मैच a lot. आज लाहौर और कराची वो का है। eventually हम उस चीज पे मैं जाएंगे, आई पहले जस्ट हम ये वांट cover टू कर लें। रिमाइंड द व्यूअर्स कि हाँ, आज हाँ, मैच जो है वो बाबर आजम लाहौर और नहीं खेल कराची का रहा। है। आज रिजवान will be on the ground but Babar Azam is not playing। लाहौर और कराची का है यार। तो कराची में रिजवान है। ओए Oh, यार, sorry, my bad, my bad, ओ my मेरा- bad, my bad। कोई बात नहीं है, अच्छा, महर, sorry, कोई my बात bad। नहीं। अच्छा अब बाबर आजम की बात करें तो Yeah. उनकी जो कैप्टनसी है, he's been captain of all 3 formats Yeah. and of Peshawar Zalmi, Yeah. you know, for quite some time। तो when उन्होंने कहा था कि वो अभी भी नहीं सीखे, तो फिर कब सीखेंगे, किस तरह सीखेंगे? देखें When you've been there for so long, Yeah. and you've been traveling with him too, Yeah, right? yeah, So yeah। I mean of course वो मैं सारी अंदर की बातें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब देखें कैप्टन जो है ना वो ग्रूम डोमेस्टिक लेवल पे किया जाता है। बाबर आजम जब कैप्टन बने थे उनके पास एज सच इतना डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं था। अगर हम लास्ट मेरे ख्याल से जो कमाल कैप्टन पाकिस्तान के पास मिसबाह उल हक का है, मिसबाह उल हक ने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बहुत कैप्टनसी की हुई थी, फैसलाबाद रीजन, अपने डिपार्टमेंट की, वो सब। बाबर के पास वो एक्सपीरियंस नहीं था। बाबर को कैप्टन इसलिए बनाया गया, जो कि बाय द वे गलत था। ये मैं आपको बताऊं, आई कैन वेरी कंफर्टेबली से दिस कि ये जब सब हो रहा था तो मैंने अपना, दो आई वाज वेरी जूनियर एट दैट टाइम इन द पीसीबी एंड आई वाज वेरी न्यू, लेकिन मैंने ये कहा था कि आप सरफराज अहमद से कैप्टनसी ना लें, मामला खराब हो जाएगा। बाबर को कैप्टन सिर्फ इसलिए बनाया गया था बिकॉज ही वॉज अ परफॉर्मर, ही वॉज द फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट, इस वजह से आपने उनको कैप्टन बना दिया। That's not अच्छा, हमने criteria. कैप्टन तो बना दिया, बट देन अगेन you did not do anything to groom him. What I would have liked was कि अगर बाबर के साथ अगर आप कोई ऐसे कोच लगाते mentor या जो कोई कि रख देते हैं। टैक्टिशियन होते तो शायद बाबर को भी उससे ज्यादा हेल्प मिलती। फिर बाबर को वहां से उस तरह से हेल्प नहीं मिली। एंड देन अगेन महक देखें, एक बात है, ऑफ कोर्स पिछले 2.5 साल से बाबर खुद भी परफॉर्म नहीं कर रहे, टीम का ग्राफ भी नीचे गया, तो उंगलियां उठ रही हैं। बट अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, देखें 2021 में आपने सेमीफाइनल खेला, 2022 में फाइनल खेला, तो उस वक्त बहुत सी ऐसी चीजें थी, और जो कि फाइनल मेरे ख्याल से आप सिर्फ तब हारे जब शाहीन को इंजरी हुई। अगर वो ना yes, होती तो yes, प्रॉब्ली yes, यू कुड yes. हैव वन दैट। Yeah. तो फिर जब आपके रिजल्ट्स आपकी फेवर में भी नहीं जा रहे होते ना, तो उंगलियां बहुत ज्यादा उठती हैं। और एक और जो सबसे बड़ी चीज है, देखिए बाबर हैज बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। 2015 में उन्होंने डेब्यू किया, 2019 के वर्ल्ड कप में तो वो ही वाज लाइक, आपकी क्या कहना चाहिए, एक मेन प्लेयर टू वॉच आउट थे। फिर उसके बाद भी उन्होंने जो परफॉर्मेंसेस दी, बाबर हैज बिकम अ प्रिजनर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब वो अगर कुछ
छोटी मोटी परफॉर्मेंस भी दे, हमें होता है नहीं हमें बाबर से ये नहीं चाहिए, हमें बाबर से ज्यादा चाहिए, एंड देन अगेन फिर जब आपका ग्राफ नीचे है, You kind of crack in pressure. यस, So तो maybe वो they need अब a उस वजह sports से वो अब उस तरह से psychologist then. अब A देखिए really good देन अगेन sports दैट इज psychologist. वो नाउ नजर भी आता है पाकिस्तानी टीम को, अगर आप देखें भी ना playing on the ground, you can tell they crack on those pressure लेकिन- moments. Not just Babar, all of them. Serious मस्ती, ये हमारा मीम वाला सेगमेंट है. Before I go on, telling you guys about that and how you can enter the contest, हम चलते हैं और देखते हैं हमारी जो मीम्स जो इस टूर्नामेंट से सबसे बेस्ट हमें मीम्स लगी हैं. We've got them up on screen here for you. So player of the match award in PSL is, I believe, a hair dryer. ये तो हमने काफी दफा अब हम देख चुके हैं इस मीम को. And then underneath it says player of the tournament award in PSL is a bike. I mean, a bike's kind of cool, but I'm sure कि that's not the only thing, maybe. अच्छा, आप लोग इसके बारे में आपको क्या लगता है? Jimmy Boy, let's ask you. अच्छा खासा बंदा है, अब ये भी वन व्हीलिंग शुरू कर देगा मुगलपुरे के पुल पे। कोई तरीका 70 दे दी है। ये मतलब अगर बाइक ही आपने देनी है, आप कोई अच्छी बाइक दे दें, वो एक यामाहा की बाइक है, कोई What about a heavy bike? कोई हैवी बाइक दे बेच के भी पैसे उससे आ जाएंगे ना. आपके हद पास होती अच्छे है, खासे. मतलब यार आपने 70 दे दी है, कोई उस यार पे आप बात तो हेयर ड्रायर की करें ना. देखिए Hair हेयर dryer, यानी कि I don't even think the women's team would want that as a बट इट्स उस बंदे के बाल ही नहीं है। it's not a player of the tournament award, basically नहीं, but hair dryer- Dollins is a sponsor of Karachi Kings, और मेरे ख्याल से उनकी कोई ये sponsor commitment है कि आप whenever there be a AC दे दें. best performer, तो हम कोई Dollins की appliance तो देंगे। AC दे दें. Dollins ही वो आपके वैसे भी बाल बहुत और जरूरत- आपका मामला मेरी है, बात सुनिए, मैंने नहीं उसका माना। वैसे भी पाकिस्तान AC की वैसे भी बहुत जरूरत होती है पाकिस्तान Yeah. में. The तो hot, especially कराची में. जेम्स विंस लेके जाएगा AC, उसने तो इंग्लैंड लेके जाना है। डॉलन्स की और भी तो बहुत चीजें हैं जो वो बेचते हैं, सिर्फ हेयर ड्रायर तो नहीं बेचते. खैर, I mean, I guess अब उनसे क्या एक argument सेफ्टी भी कर दे सकते देनी थी, हैं. फिर बाल बूल साफ कर लेते। अजीबोगरीब यहाँ पे हरकतें हो रही हैं। अब हम और क्या कह सकते हैं. Anyway, let's go on to the second meme. बजट थोड़ा हो गया लगता Which is है on PSL screen. Okay, Haris Rev can't bat. I believe that is who in the middle? Can't That's back, Rizwan. can't bowl। Rizwan can't bowl and Babar Azam is just simply can't. वो कवर ड्राइव मारी थी ना असल में। नहीं वो भी नहीं हो रही. Can't. बस can't do captaincy, can't do a cover drive. can't लेकिन do कम बैक anything. होगा। Why don't you introduce yourself, Hamza? Sure. I run a media publication Oh, by okay. the name of Propaganda, and now we've diversified into PG Bazaar. Of course, everybody knows what propaganda and PG Bazaar is. Nice, very nice. And from before, we have Jimmy Boy with us. Anyway, अब थोड़ी सी पहले करते हैं मैच की बात. तो फ़खर ज़मान ने लाहौर कलंदर्स के लिए फिर से ही showed up for them. तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए फ़खर ज़मान तो बड़ी ज़बरदस्त बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी, दैट ही इज़ इन अ वंडरफुल फॉर्म. रिसेंट में हमने देखा बेचारा अनफिट हो गया था, फिर पीसीबी के भी उसके साथ मसाइल चलते रहे, आया चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर एक ही मैच खेला और वही हमारा एक ओपनर था, वो भी अनफिट हो गया. लेकिन इन 2 मैचेस के अंदर जो लाहौर कलंदर के आखिरी 2 मैचेस हुए हैं, ही लुक्स इन सुपर्ब फॉर्म. ना सिर्फ वो छिक्के मार रहे हैं, वो अच्छे बॉलों को छिक्के मार रहे हैं. अब वो बॉलर क्या करें? अब टीमों के पास ऐसा है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स उन्होंने रखे हुए हैं, क्योंकि हर टीम के पास लेफ्टी बैटर्स कम होते हैं और राइटी ज़्यादा होते हैं. वो जो एक आधा लेफ्टी होता है उसके लिए कैप्टन्स कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह का बैट्समैन जिस तरह मोइन अली है जो ऑफ स्पिन कर ले वो हो. अब जितना अवेलेबल था पीएसएल के अंदर मवाद सब ने उठा लिया, तो अब है नहीं कराची किंग के पास कोई इस तरह का बैट्समैन जो ऑफ स्पिन करता हो. उनके पास मिनहास जो इमर्जिंग कैटेगरी में है वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, फिर खुर्शीद जो उनके लिए बॉलिंग कर रहा है वो भी है. तो स्पिनर इनके अलावा कोई है नहीं और उनकी बदकिस्मती ये है कि वो फ़खर के हत्थे चढ़ गए आज फिर. और फ़खर उनको खड़े खड़े मुश्किल चीज़ होती है. देखिए पाकिस्तान में समेत मेरे ही हम सब फीट यूज़ करके छिक्के मारते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा बॉलर्स के पास चांस होता है आपको, अगर आप थोड़ा सा भी जल्दी निकल जाएं वो आपको पकड़ लेते हैं. फ़खर एक ऐसा बैट्समैन है पाकिस्तान के पास जो स्पिनर को खड़े खड़े छिक्के मारता है. और जो छिक्के इसने आज मारे हैं, स्पेशली जो खुशदिल शाह को भी मिड ऑफ के ऊपर वाला छिक्का मारा है, उसने खुशदिल ने बेचारे ने बचने के लिए बाहर बॉल किया, ठीक, और उसने वहीं से, क्योंकि लॉन्ग हैंडल से वो खेलता है, वहीं से उसने दूर से उसको छिक्का मारा. मतलब इस बॉल को वो क्या करे, खुशदिल शाह या बॉलर इसके बाद क्या करे. फिर वो बीच में आया, 2 बॉल अच्छे हुए, फिर उसने अच्छा बॉल किया, वो खड़े खड़े इधर खींच गया. फिर मिनहास भी आया, मिनहास उसके आगे. सो ऑल इन ऑल जब भी फ़खर ज़मान खेलते हैं, फ़खर ज़मान इसी तरह का खेलते हैं, इसलिए वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, इसलिए जब जब वो परफॉर्मेंस करेंगे
चाहे वो लाहौर कलंदर के लिए हो, चाहे वो पाकिस्तान के लिए अंदर हो, मोर ऑफन देन नॉट उनकी परफॉर्मेंसेस टीम के काम आएंगी। सो ये उनकी क्वालिटी है कि उनकी परफॉर्मेंसेस टीम के काम आती और है। स्पेशली इंजरी के बाद वापस आना और एकदम से परफॉर्म कर देना, सो यू थिंक दैट्स ओनली समथिंग दैट यू नो एन इम्पैक्ट प्लेयर लाइक फखर जमान कैन डू? नॉट ओनली फखर जमान कैन डू इट, दैट बहुत सारी मिसालें हैं कि जो इंजरी से बाद, गुड थिंग इज कि उसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि अगर आप फखर जमान का आपने इंटरव्यू भी सुना होगा, उन्होंने बोला कि मैं इंजर्ड था, अभी आके मैंने लाहौर कलंदर के कैंप में बैटिंग स्टार्ट की है, तो उन्होंने सिर्फ 3-4 दिन का कैंप किया और उसके बाद वो इस तरह की मैच अवेयरनेस और गेम अवेयरनेस शो कर रहे हैं और हिटिंग शो कर रहे हैं कि कितनी स्ट्रेंथ उनके अंदर अभी भी मौजूद है। और वो लोग जो शायद उनको राइट ऑफ कर चुके हैं, शायद वो ये कह रहे हैं कि फ़खर ज़मान का करियर ख़त्म हो गया है, तो उनके लिए ये जो 2 इनिंग्स हैं ये बहुत बड़ा मैसेज है कि प्लीज़ ज़रा इतनी जल्दी लोगों को राइट ऑफ करना बंद करें। फ़खर ज़मान की बड़ी सर्विसेज हैं और वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं और पाकिस्तान के लिए अभी वो खेल सकते हैं और उन्हें खेलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, डैरल मिचेल की बात करें, ऑब्वियसली उनके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा हाइप थी और उन्होंने भी इस मैच में परफॉर्म कर लिया, लाहौर कलंदर्स के लिए कर दिया था, उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है। तो बताएं कि डैरल मिचेल फाइनली ही इज लिविंग अप टू हिज पोटेंशियल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट डैरल परफॉर्मेंस? मिचेल एक इस तरह के प्लेयर हैं महर कि वो जो है दोनों गेयर्स हैं उनके पास। जब वो गेम अवेयरनेस मैच सिचुएशन को बड़ा अच्छा रीड करते हैं, जहाँ पे हमने न्यूजीलैंड के, ये तो फिर भी लीग है, इवन दो वो अपनी कंट्री से भी जब खेल रहे होते हैं, जैसे ही उनको लगता है कि यार यहाँ पे थोड़ा सा रनिंग बिटवीन द विकेट तेज करने की ज़रूरत है, पार्टनरशिप डेवलप करने की ज़रूरत है, वो उस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, सेफ क्रिकेट विदाउट टेकिंग टू मच डॉट बॉल्स, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक वो करते हैं। गेम अवेयरनेस बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जैसे इस तरह का पिच आता है, हाई स्कोरिंग गेम है, उन्हें पता है, तो उनकी इंटेंसिटी आप बिल्कुल डिफरेंट देखेंगी। बेशक एक तरफ से फ़खर खेल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप उनका स्ट्राइक रेट भी देखें तो 23 बॉलों पे 40 पे वो भी खेल रहे थे। तो देखें, अब डैरल मिचेल ने भी ऑफ ऑफ 31 बॉल्स उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी बनाई है, तो रिजवान ने भी इन्हीं बॉल्स में अपनी हाफ सेंचुरी बनाई थी जब उन्होंने अपनी सेंचुरी बनाई थी। तो उस वक्त तो आपने कहा था कि मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए दिस इज़ टू स्लो, तो अब तो ये डैरल मिचेल के लिए लाहौर कलंदर्स के लिए डैरल मिचेल आप कह रहे हैं कि काम आ गया था। महर, मैं नहीं चाहता कि आपके अगेंस्ट बात करूं। रिजवान ने मेरा नाम महक है। महक उसने 38 बॉल पे बनाई थी और इसने 31 बॉल पे बनाई है, और 7 बॉलों का डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। T20s बड़े अच्छी है, पीछे से आप जो मशवरा दे रहे हैं बहुत ज़बरदस्त दे रहे हैं, ऐसे फुल टॉस देते रहे, हम उसको ग्राउंड के बाहर मारते रहेंगे। तो 7 बॉलों का डिफरेंस था। नहीं, मैंने बहुत दफा शो पे कहा है कि T20 क्रिकेट में हर बॉल मैटर करता है, दिस इज नॉट ODI सो क्रिकेट। इसने 31 बॉलों पे की है, फ़खर ज़मान ने 29-30 agree बॉलों with you, पे every की ball है। matters. पुराने ज़माने में जब हम खेल रहे थे तब ODI, तब T20 में 50 काउंट होता था 35 बॉल पे। हाँ। अब उससे नीचे आ गया अराउंड 30 बॉल्स पे आपने 50, स्पेशली जो पिचेस छोटी बाउंड्री हल्की बॉलिंग पाकिस्तान के अंदर है, इस पे तो 30 बॉलों पे ही बनती है आपकी। अगर आप इससे ज्यादा बॉल लेंगे तो हो सकता है वो मैच की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि छोटा मैच है कि बड़ा मैच है। 160-70 वाला मैच है तो 35 बॉलों पे 50 भी चल जाएगा, लेकिन जहां 250-240 हो रहे हैं वहां पे अब आप 35 बॉल पे भी 50 करेंगे तो अपनी टीम के अगेंस्ट जाएंगे। हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स वी नो कि T20s में हर बॉल ही काउंट करती है, ये हमें शो पे बहुत दफा कह चुके हैं। I'll start with you. Which Pakistani cricketer is nicknamed Boom Boom? शाहिद अफरीदी। Okay. Which city is home to the Gaddafi Stadium? Lahore. Record to score, अब आसान वाले हो गए हैं, but record to score a triple century. Who has the record to score a triple century? Who has the record to score it? Who started? Who was the first Who was one? the first one? Yeah, who was the So first back- one? It has to be quick. अगर आपको पता यूनुस है? खान? No, Hanif Mohammed. Anyway, who is the fastest Pakistani to score a triple century in cricket? वो Hanif Mohammed हो गया. Fastest Pakistani to score 10,000 ODI, 1,000 ODI runs. सुन नहीं रहे तुम फखर क्या जमान? कह रहे थे? या फखर जमान? Ah, yeah. फखर जमान. अच्छा, Pakistan's captain during the 1992 World Cup win. Imran Khan. Two किसका World था Cup. Can you आपको? imitate? Can you do that voice for us again? देखिए आप 92 का वर्ल्ड कप हम बैठे हैं, एक टीम एफर्ट थी और ये नहीं हो रहा था कि किंग कर लेगा तो रिजी कर लेगा, या तो विन है या तो लर्न है, सिर्फ वो नहीं हो रहा था वहां पे टीम एफर्ट की वजह से। That's a great imitation, by the way. Great imitation. Thank you. अच्छा, अब थोड़े से टर्म्स की तरफ चलते हैं. What's a googly? इट्स काइंड ऑफ अ स्पिन। इतना मुझे आइडिया है कि स्पिन होती है और आई थिंक बहुत ज्यादा स्विंग हो जाती है, दैट्स ऑल आई नो। No, it एंड turns- देयर इज वो अ आपको टेक्निकल वे he'll टू correct you. No, it turns the other way. It's a leg spinner. Leg spinner का बॉल राइटी को किया है तो it just leaves the batsman. जो गुगली होता है सेम एक्शन में it just come towards you. So it's
Googly. That's why it's called googly. अच्छा, what about लेग स्पिनर इधर को टर्न होता है, उसी एक्शन में googly इधर को टर्न होता है. what about cow corner? वहाँ पे जहाँ भैंसें बंधी होती हैं. क्या है? Okay. And welcome to the post show of Free Hits by Wali Sports. आज का जो मैच था वो था लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान. It was the battle of the rivals and Lahore Qalandars taking that win, an absolutely amazing win for Lahore Qalandars. I mean, a lot of people were expecting कि कराची किंग्स ये ही अपने होम ग्राउंड में फिर से जीत लेगा, but Lahore Qalandars definitely, you know, after having a bit of a yo-yo start, they really are going through for themselves. And to talk about that in detail, I've got Ahmed Shehzad, Hamza Ghaznavi and Ehsan Nagi here with me in the studio. Ahmed, लाहौर कलंदर्स ने जो जीत उनको बिल्कुल बहुत काफ़ी चाहिए थी ताकि उनका कॉन्फिडेंस रिटेन रहे, सो दैट दे कैन कीप गोइंग विद दिस फ्लो, कीप गोइंग विद दिस मोमेंटम. कितनी ज़रूरी थी ये जीत उनके लिए? और फ़खर ज़मान और अगर डैरन मिचेल की पार्टनरशिप की बात करें, इट्स एब्सोल्युटली सेंसेशनल स्टफ बाय देम एंड डैरन मिचेल लिविंग अप टू हिज हाइप, he finally showed up. So how would you summarize all that? I think लाहौर की टीम से ज़्यादा लाहौरियों को इस जीत की ज़रूरत थी. मी बीइंग अ क्रिकेट फ़ैन, लाहौर से हूँ, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सीज़न रहा था लास्ट दफ़ा. ये लोग या तो बिल्कुल ही आसमान पे हैं या तो बिल्कुल यहाँ है, बीच की क्रिकेट नहीं थी. और हमारी जितनी भी बातें थी आप देख लें, फ़खर ज़मान ने आज फिर परफॉर्मेंस की है. आप रिज़ल्ट देख लें, मोर ऑफन देन नॉट लाहौर के हक में ही जाएगा. उसके साथ आज अच्छा ये हुआ है उनके साथ, फ़खर तो खेलते ही खेलते हैं. उन्होंने तो जो है ना गिदरकुट लगाई है, आई एम सॉरी, लेकिन मिचेल बड़ी सेंसिबल इनिंग खेली है. आई थिंक इनकी दोनों की छिक्के चौकों के अलावा इन दोनों ने आज ये भी दिखाया है कि जितने भी अच्छे बैचेस हैं, जो भी हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत मैटर करती है. जहाँ जहाँ बॉलर ने अच्छा बॉल किया है वहाँ उन्होंने नज किया गैप में और 2 लिए हैं. 2 के बाउंड्रीज बड़ी नहीं थी, फिर भी दे मैनेज्ड सिंगल डबल्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली. और एट द सेम टाइम थोड़ा सा कराची को नुकसान ये हुआ है कि हमारे पास शायद पूल के अंदर ही इस तरह की ऑप्शंस बहुत कम मौजूद हैं. और वैसे भी रेयर ट्रेट है, नॉर्मली कैप्टन्स प्रेफर कि एक बैटर हो जो ऑफ स्पिन करता हो, तो जब लेफ्टी आए तो उनके अगेंस्ट यूज़ हो जाए. लेकिन कराची के पास इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं थी. उनके पास 2 स्पिनर थे, एक मिनहास जो इमर्जिंग कैटेगरी में उन्होंने खिलाया, दूसरा खुशदिल शाह, और दोनों आगे फ़खर के सामने. अब इन पिचेस पे जहाँ सीमर्स के लिए थोड़ा सा स्विंग और जिप मौजूद था, स्पिनर का बॉल जहाँ थोड़ी सी घास आती है स्किड होकर बड़ा ज़बरदस्त बल्ले पे आता है. फ़खर ज़मान के पास ये स्ट्रेंथ मौजूद है कि फ़खर ज़मान वन ऑफ दोज प्लेयर्स इन पाकिस्तान जिनको फीट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. खड़े खड़े वो छिक्का मारते हैं. ठीक है, वो यहाँ तो घुमाते ही हैं, वो तो कोई भी उनके सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाए वो मारते हैं. इवन वो हमने जो देखा वर्ल्ड कप के अंदर, फिलिप्स को तक उसने नहीं छोड़ा, और स्पिनर भी आते हैं तो वो मारते हैं. लेकिन आज जो बेस्ट शॉट था उनका वो ये था, जब बॉलर आपसे डरता है तो वो थोड़ा सा आपसे बचने की कोशिश करता है. इसी तरह खुशदिल जब बॉलिंग कर रहे थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर है बेचारे, इतने तगड़े बॉलर नहीं है, लेकिन ही इज़ बॉलिंग आउट ऑफ हिज स्किन. इस तरह के बल्लेबाजों को इस तरह की पिचेस में बहुत मुश्किल होता है. उसने बार बॉल किया. फ़खर ज़मान क्योंकि वो लॉन्ग हैंडल से खेलते हैं, उसकी रीच काफ़ी ज़्यादा होती है. दूर बॉल तो उसने दूर से ही वहाँ से कनेक्ट करके मिड ऑफ के ऊपर से छिक्का मारा है. आई थिंक दैट इज़ फिनोमिनल. और बहुत खुशाइंद है ना सिर्फ ये लाहौर कलंदर के लिए, इनफैक्ट पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए भी, बिकॉज कुछ लोग थे जो तो उनका करियर खत्म करा बैठे हैं. वो कह रहे थे कि he won't be able to survive and come back from his injury. But there you go, फ़खर ज़मान लाहौर कलंदर 2 मैचेस जीता है, दोनों में you see फ़खर ज़मान shining bright and play. I think मुझे तो लग रहा है he is in the form of his life. मैंने कभी भी इतना फ्लुएंटली फ़खर ज़मान को जितने भी अच्छे पिच हों बहुत कम कंसेक्यूटिवली कंसिस्टेंटली खेलते हुए देखा है. ये 2 इनिंगें फिनोमिनल थी. पिछले मैच के अंदर भी, आज भी 75, 100 करें ना करें, वो जब भी परफॉर्मेंस करते हैं टीम का फ़ायदा होती है, टीम मैच जीतती है. और यही रीज़न है जो जिस तरह आपने इंट्रो में बता दिया कि मिचेल और जो फ़खर की जो पार्टनरशिप थी वो मैच को बड़े अच्छे ले गए, क्योंकि पिच इतना लंबा नहीं था, इतने लंबे स्कोरों वाला नहीं था. हसन अली देखें, बेशक आप हारे, ये कराची किंग हारा, लेकिन एक पॉजिटिव उसमें से नज़र आया हसन अली. हसन अली जब सीन के अंदर आए थे यार, उनकी बड़ी एक हाइप थी. हमारे साथ यंगस्टर जूनियर आया, वो जिप ख़त्म होती गई, लेकिन यार इस सीज़न के अंदर वो जिप उनकी जो है ना मुझे वापस नज़र आ रही है. और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है. लग रहा था कराची किंग के पास एक तो रॉ था वो जिसने अटैक किया, लेकिन हसन अली लग रहा था कि बड़े ज़बरदस्त रिदम के अंदर बॉलिंग कर रहे हैं. जो शेप, जो जिप उनको मिल रही थी, बहुत खुशाइंद है पाकिस्तान टीम के लिए भी. और अगर वो इसी तरह बॉलिंग करते रहे और समहाउ इन टॉप विकेट टेकर्स रहे PSL के अंदर, तो उनके चांसेस इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम के लिए भी ब्राइट हो सकते हैं. I'm sure. लेकिन अब हम बॉलर्स की अगर बात करें
तो पीएसएल में क्या मसला आ रहा है कि जो इमर्जिंग बॉलर्स हैं उनके वो पीएसएल में मार खाते जा रहे हैं। अरफात मिन्हास की भी आज बात करें तो उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली बहुत मार खाई। तो क्या इसमें मेंटर्स, और कल अली रज़ा थे, हमें पता है कि यू नो ही इज़ गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, ही इज़ अ फ्रेश यंग टैलेंट, तो आपको क्या लगता है कि इसमें मेंटर्स की गलती है, कोचेस की गलती है? व्हाट्स द इशू? आप क्या सजेस्ट करेंगे? जब आप अपने यंगस्टर्स पे काम करते हैं वो काम पीएसएल के अंदर नहीं होता है। मेंटर्स की कितनी गलती हो जाएगी, वो क्या सिखा लेंगे एक महीने के टूर्नामेंट में। ये काम है पीसीबी का, पीसीबी के कोचेस का, डोमेस्टिक का। ये आप बच्चों को ग्रूम डोमेस्टिक के अंदर करते हैं। अंडर 16, अंडर 19, पाकिस्तान अंडर 19 के टूर्स होते हैं। पाकिस्तान के हो रहे हैं नहीं, पाकिस्तान ए के टूर्स होते हैं। पाकिस्तान के हो रहे हैं नहीं। डोमेस्टिक के जो क्वालिफिकेशन है कोचेस की, क्या वो मेरिट पे लग रहे हैं? नहीं। अभी भी लेवल 4 के चंद आदि होंगे वो घर बैठे हुए हैं, लेकिन यारी दोस्ती चल रही है। और क्या वो सिखा पा रहे हैं? नहीं। तो ये बच्चे पोटेंशियल वाले होते हैं। कई बच्चे होते हैं जो आते हैं, अल्लाह उनकी हेल्प करते हैं, परफॉर्मेंस कर देते हैं। कई होते हैं जिनको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ये अरफात मिन्हास वगैरह, ये लोग बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। इनको राइट सपोर्ट डोमेस्टिक के अंदर चाहिए, राइट गाइडेंस डोमेस्टिक के अंदर चाहिए। और जहाँ तक इस मैच की आप बात कर रहे हैं या पिछले मैच की भी आप बात करें, अली रज़ा की गालिबन आप बात करना चाह रही हैं, देखिए जब आप मास्टर प्लेयर्स के सामने होंगे या अगला बैट्समैन बहुत ही तगड़ी फॉर्म के अंदर होगा, जैसे साहिबजादा फरहान ने जो सेंचुरी की है, उसके सामने आप ब्रेट ली को भी फिर ले आओगे, वो कल जिस तरह फॉर्म में था नहीं था, जिस तरह आज फखर जमान छिक्के मार रहा था। एक लेफ्टी बैट्समैन खेल रहा है वहाँ आप लेफ्ट, क्योंकि डेविड वार्नर की गलती नहीं है, उनके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो अब उसने करवाने थे ओवर, वो बेचारे को उसने करवाए और वो उसके सामने तक खड़े खड़े उसको छिक्के पड़ गए। इसमें अरफात मिन्हास का कसूर नहीं है। आई थिंक इसमें थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट हुआ होता है वो है, ये पोटेंशियल वाले बच्चे हैं, ये इंशाल्लाह जरूर पाकिस्तान के लिए जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। यू डेफिनेटली राइट। ये ऐसे ने भी बल्कि बात की थी, उन्होंने कहा था कि पीएसएल इज मोर फॉर यू नो मेकिंग मनी, ताकि वो फिर से इन्वेस्ट किया जाए, बट जो प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक से निकलते हैं। अच्छा एहसन, अब कराची किंग्स की बॉलिंग की बात करें, ओके रिगार्डलेस ऑफ हसन अलीज ब्रिलियंट बॉलिंग फिगर्स, व्हाट डू यू थिंक कराची ओवरऑल, व्हाट डिड दे लैक टुडे कि वो अपनी यू नो दे कुडंट शो अप द सेम वे दैट दे डिड इन देयर फर्स्ट मैच? आई थिंक मैच जब फ़खर जमान ज़रा लंबा जब चले गए ना, तो वहाँ पे मैच कराची के हाथ से काफ़ी हद तक बाहर हो गया था, बिकॉज फ़खर की जो कहना चाहिए उसकी ट्रेट या जो उसकी यूएसपी है वो यही है कि व्हेनेवर ही बैट्स लॉन्ग ही विल फिनिश द गेम फॉर यू। बेशक वो फर्स्ट इनिंग्स में टोटल सेट हो रहा हो या फिर आपको चेस करके दे रहे हो। हमने जो अहमद भाई भी वहाँ पे थे उस वक्त ओवल में इंडिया के खिलाफ भी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में देखा था, वो यही था, जब फ़खर ने लंबा बैट किया तो वो मैच ऑपोजिशन के हाथ से ले जाते हैं। एंड देन अगेन उसके अंदर देखें फ़खर के लंबे बैट करने से क्या फ़ायदा हुआ, वो अहमद भाई ने भी उसको टच किया कि जो कराची के पास दो स्पिन ऑप्शंस थे वो दोनों रिडंडेंट हो गए। अब अगर फ़खर जमान खड़ा है, आपने उनके ओवर्स भी आपने निकालने, क्योंकि आपने हसन अली को, एडम मिलने को, आपने इनको लास्ट में ओवर्स देने हैं, तो बीच में कौन बॉलिंग करेगा? वो आपके स्पिनर्स ने आना था। और वो जब दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आए, वो जाहिर बात है वो जहां मर्जी बॉल कर लें, बेशक बाहर बॉल कर लें, आर्क में बॉल कर लें, वहां पे उनको मार पड़ रही थी। एंड देन अगेन जब फ़खर के साथ डैरेल मिचेल ने बहुत ही कमाल एक सपोर्टिंग रोल किया, और जो सबसे आउटस्टैंडिंग चीज थी उस सपोर्टिंग रोल की वो ये थी कि एक अच्छे स्ट्राइक रेट पे डैरेल मिचेल भी स्कोर कर रहे थे। तो नॉर्मली जो फ़खर को पाकिस्तान टीम में एक जो सपोर्टिंग वो नहीं मिलता, ही डजंट गेट एनफ, क्योंकि हम वो कहते हैं कि एंकर, उनके साथ एक एंकर होता है। यहाँ पे जब आप फ़खर के साथ आप देख रहे हैं कि ऐसा बैट्समैन है जो उन्हीं के जैसे रेट के ऊपर स्कोर कर रहा है, तो फिर एकदम से टीम का टोटल भी उठ गया। एंड दैट इज ऑफ कोर्स व्हाट वी नीड इन टुडेज T20 क्रिकेट। यही हमने कल बात की थी, आई थिंक ब्रिलियंटली समड अप बाय नागी। कल हमने बात की थी, हम बार बार ये बोलते हैं T20 मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर कि जी फ़खर के साथ एक एंकर, भाई क्यों एंकर? फ़खर भी इंसान है। अब पिछले मैच में जब फ़खर ने परफॉर्मेंस की है दायरे के अंदर, फ़खर वो स्ट्रगलिंग, लेकिन वहाँ अब्दुल्ला शफीक की लग गई, वो हाई स्ट्राइक रेट से खेला, फ़खर को टाइम मिल गया, सेट हो गया, उसने एंड में जो है ना खीर कर दी। इसी तरह आज भी। सो गॉन आर द डेज, आपको एंकर वाले प्लेयर अब चाहिए नहीं है। कोई एक टीम बता दें, वो एक इतना बड़ा प्लेयर था विराट कोहली, वो भी साइड पे हो गया क्योंकि उसको समझ आ गई कि यार अब मेरा टाइम नहीं है इसमें, मैं वर्ल्ड कप जीत गया साइड पे। तो अब गॉन आर द डेज, आपको फ़खर के साथ भी अटैकर्स और बैशर चाहिए, क्योंकि कभी फ़खर की अगर नहीं लग रही तो वो फ्रस्ट्रेट होकर आउट ना हो जाए, उसके पास ये कुशन मौजूद हो गया, यार सामने साइम खड़ा है, सामने हारिस खड़ा है, सामने साहिबजादा फरहान खड़ा है, शायद इसको बॉल मिल जाए, ये मार जाए, एट द सेम टाइम वो फिट होगा तो वो भी मैं ही लंबा। सो आई थिंक दैट्स हाउ द थिंग्स गोइंग आगे के लिए, एंड ही इज spot on about that. Thank you, Ahmed Shahzad, Hassan Ghaznavi and Ehsan Nagi for being here with us, in conversation with us. Tomorrow we will be coming back live at 6:40 p.m. for the pre-match show. So make sure you do tune in for a lot of cricket knowledge, a lot of PSL talk, and of course a lot of laughs and banter. But until then, it's goodbye for now.